السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم حضرات، میں یہ مختصر سی تقریر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کا پریشر ہے کہ عاشورہ اور محرم کے مہینے میں مولانا صاحب یہ بتائیے کہ کیا کرنے کے کام ہیں۔ تو اگر میں ایک جملے میں یہ کہوں کہ حقیقت میں کوئی بھی کام کرنے کا نہیں سوائے ایک کے، تو شرعی لحاظ سے اور دلائل کے لحاظ سے میری بات نہایت مستند ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عاشورہ کا تعلق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہے، اور اسی شہادت کو مان کر کے پھر مختلف اعمال کیے جاتے ہیں، کچھ واقعات اس میں گڑھے جاتے ہیں، کچھ خرافات ہیں، کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات بتا دیں، جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی عبادت 10 محرم یا محرم میں کوئی کرنا چاہتے ہیں، جب دین مکمل ہو گیا اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا، تو سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز نئی کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ واقعہ پیش ہی نہیں آیا۔ تو ایک بات تو یہ جان لیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں گے، یا دوسرا ہمارا عمل ہوگا اگر وہ چیز نبی کی سنت میں نہیں ملی ہے یا یہ کہ نبی نے نہیں کیا ہے، تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صحابہ کے عمل سے ہمارا عمل جو ہے وہ ٹیلی ہونا چاہیے، اس لیے ہمارا نام جو ہے اہل السنہ والجماع ہے، اور جماع کا میں نے جماعت الصحابہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کیسے کریں گے؟ لہٰذا جتنی باتیں آپ کرتے ہیں، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ یہ نہ تاریخی لحاظ سے اس میں اتنی حقانیت ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، اور نہ مذہبی لحاظ سے اس میں، مذہبی لحاظ سے تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف کرنے کا کام ایک ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ آخر میں کہ کرنے کا کام کیا ہے۔ اب اس میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، بعض جگہ پر 10 تاریخ کو جو ہے وہ نماز پڑھی جاتی ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور اس روزے کی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو سمجھتے ہیں، یا یہ بعض لوگ اس دن جو ہے وہ خیرات کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ اس دن جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، شربت پلاتے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں، کیونکہ ثواب جب کسی کام میں ہوتا ہے تو اس کا اپروول حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اچھا، دوسری چیز اس میں جو خرافات لوگوں نے کی ہے، دلدل بناتے ہیں، باغ بنتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں مہندی اٹھائی جاتی ہے، پھر علی اصغر کا جھولا بنایا جاتا ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 3، غلط فہمیاں ہیں کہ 10 تاریخ کو چولہا نہیں جلانا چاہیے، 10 تاریخ کو روٹی نہیں پکانی چاہیے، 10 تاریخ کو گھر میں جھاڑو نہیں دینی چاہیے، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری باتیں کون بتائے گا؟ یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ ان چیزوں کا ان مہینے یا ان تاریخوں میں کرنا منع ہے، لیکن یہ واقعہ ہی 50 سال کے بعد پیش آیا ہے، لہذا اللہ کے رسول اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لہذا جتنی باتیں آپ جانتے ہیں، کیونکہ میں ساری باتوں کا نام نہیں لے سکتا ہوں، کیونکہ ہر علاقے میں الگ الگ طریقے کی باتیں مشہور ہیں، لہذا میں کیسے نام لے سکتا ہوں؟ تو مجھے اگر میں کسی چیز کو نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب نام نہیں لے رہا، تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ یہ چیز صحیح ہے،
बल्कि मैं सिर्फ करने वाले का नाम ले लूंगा, बकिया जितनी चीजें आप कर रहे हैं टोटल शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं, इसका शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, दूसरे लोग जो करते हैं, बहुत से लोग गैर लोग हैं, बहुत से काम करते हैं, वैसे भी कोई कर रहा हो। हम अहले सुन्नत वल जमात से खिताब करना चाहते हैं कि आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, तो अहले सुन्नत वल जमात का अमल सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए और सहाबा की जिंदगी से टहली होना चाहिए। सहाबा ने किसने मुहर्रम मनाया है, जितनी आप गलत फहमी में मुब्तला हैं वो किस सहाबी का अमल है, किसी का नहीं है। और चौथी चीज इसमें जो वाकयात नकल कर दिए गए, अभी नेट पर भी वाकयात मौजूद हैं, पेपरों में भी आ रहे हैं, इतने वाकयात बयान की गए कि तौबा इस दिन में आदम की कबूल हुई, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल से निकले, सारे नबियों की जितनी चीजें हैं सारी की सारी मंसूब कर दी गई 10 मुहर्रम से। हालांकि अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह, मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जय्यद किस्म के उलमा हैं, ये कहते हैं सब झूठ है। इसमें सिर्फ आपको बता दें 2 चीजें ऐसी हैं इन वाकयात में जो सच हैं, बाकी जितनी चीजें आप जानते हैं वो सारा का सारा अल्लामा इब्न जौज़ी और मुहद्दिस अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मा सबत बिही सुन्ना मिन अस्सना, उर्दू में तर्जुमा हुआ है मोमिन के माहो साल। उसमें लिखा है कि टोटल गढ़ी हुई रवायतें हैं, टोटल मौजू रवायतें हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हर नबी के बारे में एक वाक़या लिखा हुआ है कि इस दिन जो है क़यामत। हाँ, 2 बातें जो बताया मैंने कि सही है, वो 2 क्या हैं। एक ये है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस दिन फिरौन से नजात मिली वो 10 मुहर्रम की तारीख थी, नंबर 1। नंबर 2, क़यामत आएगी दूसरी रवायत से कि जुमा का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी। ये 2 बातें तो एक हद तक सही है, पहली वाली तो टोटल सही है, दूसरी वाली में कुछ लोगों ने बहरहाल दूसरी वाली भी सही है। लेकिन उसके अलावा जितनी बातें यूनुस अलैहिस्सलाम पेट की मछली से निकले और फला हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आपसे सब का सब टोटल जो है वो अल्लामा इब्न जौज़ी और मुहद्दिस, ये मैं दोनों का नाम लिख रहा हूँ, इसका मतलब यही 2 नहीं है, बल्कि जितने भी मुहक्किकीन हैं सबके नजदीक ये सारी की सारी रवायतें क्या है, झूठी हैं। ये बस हुआ ये है कि हमारे भी बाद उलमा ने अपनी किताबों में उनका जिक्र कर दिया। हर साल अखबारों में इस किस्म के वाक़या 10 मुहर्रम को ये हुआ, 10 मुहर्रम को कुछ नहीं हुआ। 10 मुहर्रम को जो हुआ है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, वो आपने जो बयान फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो फिरौन से नजात पाए, बस ये हुआ है। और 10 तारीख को हुजूर के बाद जो हुआ है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत है। अब रहा ये कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत कोई छोटा मोटा तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़े अफसोस की बात है। लेकिन सवाल ये है कि जिस इस्लाम को आप मानते हैं उसका तरीका तो हबीब मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुसलमानों को शहीद नहीं किया गया? क्या मुसलमान जंगे बदर में नहीं मारे गए? क्या मुसलमान उहद की लड़ाई में नहीं मारे गए? क्या जंगे हुनैन में नहीं मारे गए? क्या आपके चचा हज़रत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद नहीं हुए? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर की शहादत पेश नहीं? हज़रत उमर की शहादत तो पहली मुहर्रम को है और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। सवाल ये है कि ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत ही क्यों बतौर शहादत डे के या मुहर्रम के 10 दिन मनाए जाएं? इसकी क्या वजह है? इसकी कोई लॉजिक हमारे पास नहीं है। और जितने भी शोहदा हैं, अगर आप इस्लाम के शोहदा की शहादत डे मनाएंगे तो दिन 365 हैं, शोहदा की तादाद 365 से ज्यादा है। लिहाजा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितनी बातें हैं या तो दूसरे से आप प्रेशराइज हैं, दूसरों से मुतासिर होकर ये कर रहे हैं, या जहालत की वजह से। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह में तो आपको हैरत होगी कि ये जितनी खुराफात हैं, शेर बनते हैं, फलाबंद, इसमें एक बड़ी तादाद हिंदुओं की शामिल है। आप अंदाजा खुद कर ले कि नमाज पढ़ता है कभी कोई हिंदू? भाई अगर ये इस्लामी काम है तो सवाल ये है कि हिंदू इस काम को क्यों करेगा? एक बड़ी तादाद यहाँ हिंदुओं की करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने से मना फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना कूटने से मना फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाचे मारने से मना फरमाया। जो कुछ भी कर रहे हैं इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, जो बड़ी दिलचस्प बात है वो ये है कि ये लोग समझते हैं कि ये देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ है। ये देवबंदी बरेलवी इख्तिलाफ कतई नहीं है। आला हजरत की किताब अहकाम शरीयत उठा लीजिए, सफा नंबर 80 से लेकर 90 तक। आप आला हजरत के फतवा रिजविया उठा लीजिए। आला हजरत ने तो सबको हराम मुतलकन करार दिया है।
बस सिर्फ ये है कि उनके उलमा जो है वो इस उनके उलमा जो है वो जुमा में इस चीजों को नाजायज नहीं बोलते हैं, तकरीर नहीं बोलते, लिहाजा लोग समझते हैं कि देवबंदी बरेलवी इख्तलाफ है। एकदम गलत बात है। देवबंदी बरेलवी कतई इख्तलाफ नहीं है। ये इख्तलाफ दो फिरकों का है और ये इख्तलाफ जिहालत का है। ये इख्तलाफ बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं, हमारे यूपी में बहुत से गांवों को मैं जानता हूं, एक भी शिया नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मुहर्रम ऐसे मनाते हैं। मुहर्रम मना रहे, क्या मुहर्रम मनाना कोई चीज ही नहीं है, ना कोई ये त्योहार है, न कोई गम मनाने का महीना है। गम अगर मनाना है तो हज़रत हम्जा की मनानी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हज़रत हम्जा शहीद हुए। बहरहाल ये जितनी बातें हैं, मैं किन किन बातों का नाम लूं, सब टोटल नाजायज हैं और टोटल गलत हैं। सिर्फ इसमें जो बात सही है वो सही हदीस से जो साबित है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख का रोजा रखा। कई एक रवायतें हैं, हम उनके आखिरी रवायत को नकल कर रहे हैं जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख को रोजा रखा तो आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप 10 तारीख का रोजा रखते हैं मुहर्रम की, और इस दिन यहूदी भी रोजा रखते हैं, और वो इस वजह से रोजा रखते हैं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन से निजात दी थी, इस खुशी में रोजा रखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा तो हमारे भाई हैं, हम ज्यादा मुस्तहिक हैं कि इस रोजे को रखें, क्योंकि यहूदी रोजा रखते हैं 10 तारीख का, लिहाजा हम उनकी मुखालफत करेंगे और 9 और 10 का रोजा रखेंगे अगर हम अगली साल हयात रहे। बस ये काम करने का है अगर आपको करना है। और वो भी कोई ऐसा नहीं है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ये भी फरमाती है कि जब रमजान का रोजा उम्मत मुस्लिमा पे फर्ज कर दिया गया तो फिर इसमें अख्तियार दे दिया गया कि जिसका दिल चाहे मुहर्रम